Hi, good morning, all of you. So I said today I put up a message 5-7 minutes before that we'll begin the class at 10. So it's sharp 10 and we are beginning the class. Today we are doing this reading number 10 from my volume 1. And the name of the reading is How Animals Learn. Okay, we'll be doing the passage 1 today. And what we do when we look into any reading, when we hold a reading in our hand, do we start reading the whole passage? No, we don't. Are you there, all of you? Yes, ma'am. Okay. So we don't start Yes, ma'am. the whole passage. Yeah, we go straight to the question types. We look into all the question types. The first question type is, which paragraph has the following information? There are 7 paragraphs in the passage A to G, and we have to find which paragraph has the following information. So we leave these questions for the end. Okay. Questions 5 to 8 are true, false, not given. 9 to 13 are summary completion with the words given below. We have to fill in these words. Out of these words, we have to fill in the words. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. So these are the 3 type of questions that we have to do today. And the first set of questions is, which paragraph contains the following information? We leave this to the end. But here, because there are only 4 questions, so what we can do is we can give this a reading so that while we are doing the other questions, if we come across any such passage in which something of this sort is given, we can answer this also at that time. Okay. So, every day you watch new strategies of going about the reading and you learn how to do the reading. So any of this method may come in handy for you in the exam. Okay. So in this, the first question is a comparison between rats learning and human learning. कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसमें रैट्स और ह्यूमन को कंपेयर किया हुआ है as far as their learning is concerned. And second is a reference to the earliest study in animal learning. तो एनिमल लर्निंग की जो सबसे पहले स्टडी हुई है उसका जिक्र है, रेफरेंस इज जिक्र. ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ हु स्ट्रिप्ड द पाइन कोन. तो पाइन कोन किसी ने स्ट्रिप करा मींस ऊपर से उसको नंगा कर दिया, उसके ऊपर से वो कोन्स जो है जो भी हैं कवर्स वो उतार दिए. किसने ये करा? उसकी डिस्कवरी की गई है कि उसका पता चला, एकदम खोज हुई कि किसने ये करा. A description of a cost effectiveness experiment. कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो कीमत लगी एक्सपेरिमेंट में वो कीमत जो है वो वसूली गई, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, जितनी कीमत उस पर लगी है वो इफेक्टिव रही है, उसका डिस्क्रिप्शन है ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट का. ओके. सो अभी हम ये करेंगे नहीं. वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. The first question is, the field trip to Israel was to investigate how black rats learn to strip pine cones. तो जो फील्ड ट्रिप था इजराइल में वो इसलिए किया गया था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया गया था कि ये जो काले रैट्स हैं, ब्लैक रैट्स हैं, चूहे होते हैं रैट्स, दे स्ट्रिप कैसे सीखते हैं पाइन कोन्स को स्ट्रिप करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फील्ड ट्रिप किया गया था इजराइल का. ओके. सो इजराइल का फील्ड ट्रिप इसलिए किया गया था. लेट अस सी, गो टू द पैसेज नाउ. ओके. अब जो फील्ड ट्रिप हमारा कीवर्ड है, मैं इस सारे को ना थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ फॉर यू ऑल. हाँ, अब हमने ना फील्ड ट्रिप और इजराइल हमारा कीवर्ड है, तो हमने क्विकली पढ़े बिना इसको क्विकली हमने देखना है. यहाँ पे कहीं आपको इजराइल दिख रहा है? बस सिर्फ नाम इजराइल पढ़ना है. फील्ड ट्रिप, इजराइल, कोई भी वर्ड मिल रहा है? सी पैराग्राफ. हाँ, सी पैराग्राफ मैम. सी पैराग्राफ. हमें स्लोली जाना है, एक एक लाइन को ऐसे हाथ से कवर करके. देखो जो आपके बुक होती है ना, ये मेरे को था, जैसे ऐसे बुक पकड़ी हुई ना आपने अपने हाथ में, तो ऐसे अपना हाथ रखोगे और एक एक लाइन में से वो वर्ड देखोगे कीवर्ड है कि नहीं. आपने पढ़े बिना, ये मतलब सिर्फ कीवर्ड के लिए देखना है. ओके. ओके, यहाँ पे आ गया सी पैराग्राफ में हमारा इजराइल आ गया और ये है, इसको हम पढ़ेंगे अब. The research reported in one paper started with a school field trip to Israel to a pine forest where many pine cones were discovered stripped to the central core. So the investigation started with no weighty theoretical intent.
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो स्टार्ट की गई, कोई उसमें कोई ऐसा इंटेंट, कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो लोग इजराइल में गए, फॉरेस्ट में गए, उन्होंने बहुत सारे पाइन कोन्स वहां उनको मिले, जो कि पाइन कोन कभी आपने देखा पाइन कोन? उसके ऊपर ऐसे शेल्स शेयर लगे होते हैं, एंड में वो सारे स्ट्रिप किए हुए थे, सारे निकाले हुए थे, सेंट्रल कोर बचा हुआ था। तो पाइन कोन्स उनको बहुत सारे मिले वहां पे, जिनका सिर्फ सेंट्रल कोर था। और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो स्टार्ट हुई विद नो वेटी इंटेंट, कोई ऐसी उनकी मंशा थी नहीं क्या करने गए हैं, बस उसका डायरेक्शन था एट फाइंडिंग आउट व्हाट वाज ईटिंग द न्यूट्रिशियस पाइन सीड्स। और वो सिर्फ ये देखने गए थे कि पाइन सीड को, जो उसके न्यूट्रिशन से भरे हुए पाइन के सीड्स हैं, उसको क्या चीज खा रही थी और वो उनको कैसे बाहर निकालते थे। ठीक है, ये ढूंढने गए थे। अब पाइन पाइन सीड्स जो है उसको कौन खा रहा था, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन थी। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों की गई थी, टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक रैट्स कैसे लर्न करते हैं स्ट्रिप करना पाइन कोन्स को। तो ब्लैक रैट्स की कहीं बात हुई है? फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर जो है, मतलब वहां उन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है कि वो इन्वेस्टिगेशन क्यों करी गई थी। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करी गई थी कि कौन कैसे खा रहा है उन सीड्स को। तो इसलिए क्या इसके लिए इन्वेस्टिगेट करने गए थे कि किसी और की चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करने गए थे? किसी ये और चीज बताओ। के लिए, किसी और चीज के लिए। इन्वेस्टिगेशन का रीजन Not बताया हुआ है ना given. वहां पे। मेरी बात सुनो, अगर आपको ये समझ नहीं Fifteen. आएगा तो आप इसको नॉट गिवन करोगे, पर आप वहां देखो इन्वेस्टिगेशन का रीजन बताया हुआ है ना, कि वो इन्वेस्टिगेट करने गए थे कि न्यूट्रिशियस Yes, ma'am. कौन Yes, खा ma'am. रहा है। ठीक है, हम्म, तो आंसर विल बी व्हाट? फॉल्स होना चाहिए ना मैम इसका फिर। आंसर विल बी हाँ, फॉल्स। फॉल्स और false नॉट होगा गिवन ना। में क्वेरी होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो अगर ये नहीं बताया होता ना, कि किसी और पर्पस पे नहीं बताया होता, तो फिर आपका आंसर नॉट गिवन हो सकता था। पर इन्होंने पर्पस स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि वो न्यूट्रिशियस सीड कौन खा रहा था, इसके लिए वो वहां गए थे। ये देखो, but was directed at, ये investigation was directed at finding out what was eating the pine seeds. इसके लिए नहीं थी इन्वेस्टिगेशन कि ब्लैक रैट कैसे सीखते हैं, इसका क्या कौन खा रहा है इनको, इसके लिए इनडायरेक्टेड थी वो इन्वेस्टिगेशन। समझ गए? तो आंसर विल बी फॉल्स। फॉल्स। यस है कि ट्रू फॉल्स है? ओके, आंसर विल फॉल्स बी है, फॉल्स होगा मैम। अगला क्वेश्चन है, the pine cones were stripped from bottom to top by black rats. तो जो पाइन कोन्स है वो बॉटम से टॉप तक स्ट्रिप करे गए थे बाय ब्लैक रैट्स। तो ब्लैक रैट्स ने पाइन कोन्स को नीचे से ऊपर तक स्ट्रिप करा था, छीला था। ओके। Yes, अब ma'am. ब्लैक रैट्स देखो, आपका कीवर्ड कहाँ पे, कौन से पैरे में है ब्लैक रैट्स? मैम सी पैरा में लास्ट है में ब्लैक रैट। ठीक है, the culprit proved to be the versatile and athletic black rat, Rattus rattus, and the technique was to bite each cone scale off at its base in sequence from base to top. तो नीचे से ऊपर तक, ट्रू होगा मैम। टॉप। तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू होगा। ट्रू, वेरी गुड, ओके, क्या आंसर है इसका? So we go to the next question. It can be learned from other relevant experiences to use a photocopier. तो बाकी जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उनसे सीखा जा सकता है कि फोटोकॉपियर को कैसे यूज करना है। ठीक है, फोटोकॉपियर हमारा कीवर्ड है। फोटोकॉपियर कहीं आ रहा है, फोटोकॉपियर कीवर्ड हमारा। फोटोकॉपियर आ रहा है कहीं पे? मैम डी पैरा है। हाँ, फोटोकॉपियर है, ठीक है। rather like a new photocopier which you can work out, मतलब workout का मतलब है कि सोच सकते हो कैसे यूज करना है, how to use once someone has shown you how to switch it on. एक बार कोई दिखा दे इसको ऑन कैसे करना है तो आप वर्कआउट कर सकते हो कैसे यूज करना है। और क्वेश्चन कह रहा है it can be learned how to use a photocopier. तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू ट्रू होगा मैम। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, stripping the pine cones is an instinct of the black rats. तो pine cones को strip करना black rats का एक instinct है। इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? instinct मतलब उनको अपने आप ही उसका पता होता है कि इसको कैसे करना है, instinct है उनका। ओके, just give me 1 minute.
It's a kind of habit. हाँ Okay, that's fine. नहीं And born habit. because such words can come in your reading and Hereditary. so, Strategy. yeah, मेरे ख्याल से 6 सेंसेस जो होती हैं शायद। हाँ इंस्टिंक्ट होता है नेचुरल टेंडेंसी फॉर पीपल, मतलब वो नेचुरल टेंडेंसी है पीपल की, एनिमल्स को, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे यूजिंग द नॉलेज एंड एबिलिटीज दैट दे वर बोर्न विद rather than thought or training, मतलब ट्रेनिंग Okay, that's fine, fine. ठीक पता है होती है कैसे करनी है, ठीक है। Yes, Children ma'am. do not know by instinct the difference between right and wrong, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट का ये मतलब है। ओके तो लर्निंग हाउ टू, क्या क्वेश्चन है, स्ट्रिपिंग द पाइन कोन। पाइन कोन को स्ट्रिप करना ब्लैक रैट्स को जन्म से ही आता होता है, मतलब वो सीखते नहीं है। ओके अब इसका आंसर हम स्ट्रिपिंग पाइन कोन, हम डी पैराग्राफ तक तो पढ़ चुके हैं। मैम जो चीज इनबॉर्न होती है मैम उसे बोल हाँ सकते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। Okay. In the case of rats, the youngsters take cones away from the mother when she is still feeding on them, allowing them to acquire the complete stripping skill. तो वो acquire करते हैं, यहाँ पे लिखा है वो acquire करते हैं, False होगा मैम। तो answer will be false. अब देखो आपको instinct means natural, inborn, and acquire means learned. तो आपको instinct का meaning अब अच्छे से आ गया, और उसके meaning और इसके meaning में ही आंसर छुपा हुआ था, ठीक है। So the next question is, they are summary completion, I think, summary completion using words from the box. अब box में words दिए गए हैं, उनको ही डालना है आपने, ठीक है। While the nutcracker is more able to cache इसकी pronunciation, okay. एक मिनट, और कैश का मीनिंग भी आपको करवा देते हैं। Okay, cache is a hidden store of things such as weapons, and cache. It is cache. A hidden store of things such as weapons and arms cache, a part of computer's memory that stores copies of data that is often needing. मतलब कुछ छुपा के रखना, hidden store of things, उसको cache कहते हैं. This is cache. Okay. So pronunciation was very important for me to see because I was not sure of it, and now I'm sure of it. Okay. So ये हो गया आपका cache, ठीक है? Okay. So while the nutcracker is more able to cache seeds, the jay relies dash on caching food and is thus less specialized in this ability, but more dash. अब nutcracker और jay का comparison है, आपने ये देखना है कौन से पैरे में है comparison nutcracker का और jay का। यहाँ पे nutcracker आ गया और यहाँ पे jay आ गया, तो इस पैरे में आंसर मिलेगा आपको F में, ठीक है। A paper in 1996, Animal Behavior by Bednikoff and Baida, provides a different view of the adaptiveness of social learning. It concerns the seed caching behavior of Clark's nutcracker. The former is a specialist, caching 30,000 or so seeds in scattered location. आपका blank है. While the nutcracker is more able to cache seeds, the jay relies, अब jay की बारी आएगी. The Mexican jay will also cache food, is but much less dependent. Dependent और rely का मतलब same है. Rely का मतलब depend करना. Rely का मतलब होता है depend करना. तो jay relies what? Less on caching food. Okay. But आगे लिखा हुआ है but more dash, but jay जो है वो more dash है. अब देखो jay more क्या है? The two species also differ in their social structure. The nutcracker being rather solitary, while the jay forages in social groups. अब social है, अब words नीचे होने चाहिए, less भी और social भी. पहले में less भरना है और दूसरे में social भरना है, ठीक है? तो jay relies less and is more social, ठीक है? More social. फिर आगे है to study their behavior of caching. An experiment was designed and carried out to test these two birds for their ability to remember where they hid the seeds. In the experiment, the cacher bird hid seeds in the ground while the other dash. तो दूसरे ने क्या करा? एक ने ग्राउंड में हाइड करी कैशर बर्ड ने, और दूसरे ने क्या करा? सो आगे देखते हैं. एक ने हाइड करी ग्राउंड में. अब देखो Remember. अदर रिमेम्बर्ड. एक ने हाइड करी, दूसरे ने
उसको क्या whether करा, I can remember. रिमेम्बर करा कि उसको, एक मिनट, सी While watched. the design is slightly comical with a cashier bird wandering about a room with lots of holes in the floor, hiding food in some of the holes. तो वो hide कर रहा था while watched by an observer. तो दूसरे ने क्या करा, Watched. watch करा, Okay, yes. remember नहीं करा. Yes, ma'am. Watch जब किया. एक ने hide करा, दूसरे ने watch करा. ओके, अब देखो क्वेश्चन अच्छे से. The cashier bird hid seeds in the ground. लिखा हुआ है ना, ग्राउंड में होल्स थी, उसमें हाइड करा. While the other watched. Not remembered. दूसरे ने Yes, उसको ma'am. देखा. एक ने हाइड करी, दूसरे ने देखा. As a result, the Nutcracker and the Mexican Jay showed different performance in the role of dash at finding the seeds. Okay, in the role of what? अब जब फाइंड करनी थी तो उन्होंने नटक्रैकर और जे ने क्या, उनका जो डिफरेंट मतलब था, परफॉर्मेंस थी एट द रोल ऑफ डैश इन फाइंडिंग. यहाँ पे आएगा वर्ड आपका, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, एट द रोल ऑफ व्हाट. 2 days later, cashiers and observers are tested for their discovery rate against an estimated random performance. In the role of cashier, not only the nutcracker, but also the less specialized J performed above chance more surprisingly. However, J observers were as successful or as J cashiers, whereas nutcracker observers did no better than chance. तो यहाँ पे क्या था, in the role of observer, मैक्सिकन जे, नटक्रैकर और जे की परफॉर्मेंस डिफरेंट थी. इन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर देखो इन्होंने दिया हुआ है. इन द रोल ऑफ कैशियर में नटक्रैकर और जे दोनों ने बाय अबव परफॉर्म करा बाय चांस, बट जे ऑब्जर्वर्स वर एज सक्सेसफुल एज जे कैशियर्स, वेयरएज नटक्रैकर ऑब्जर्वर्स डिड नो बेटर देन चांस. तो नटक्रैकर एंड जे को एज ऑब्जर्वर्स उन्होंने कंपेयर करा. अब देखो वहां पे ऑब्जर्वर्स फिट होता है. Observer ही आएगा आंसर. As a result, the Nutcracker and Mexican Jay showed different performance in the role of observers at finding the seed. Yes, ma'am. उन्होंने different at the role of observers in finding a seed. They were different. Okay. The observing dash didn't do well as its counterpart. तो observing में किसने इतना अच्छा नहीं करा? Whereas Nutcracker observers did no better than chance. मतलब वो तो अच्छे थे जे, पर नटक्रैकर ने अच्छा नहीं करा. तो क्या आना चाहिए ब्लैंक में? Nutcracker ही आएगा. Okay, so did you get to learn something from this reading? एक रीडिंग, अच्छा अभी हमारे 4 क्वेश्चन रहते हैं, मैं उनको भूल जाती हूँ हमेशा, which I leave for the end. Comparison between rats learning and human learning. अभी हमारे किसी पैरे में ये नहीं आया ना, हमें नहीं पता चला. अगला देखते हैं. Reference to the earlier study in animal learning, ये भी नहीं आया. The discovery of who stripped the pine cone, तो ये हमने थोड़ा सा आइडिया लग गया कि वहां पे होगा जहाँ पे स्ट्रिपिंग की बात हुई है कि किसने स्ट्रिप करा. एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट, इसका भी अभी पता नहीं चला एक्सपेरिमेंट. अब देखते हैं, ए पैराग्राफ में जाओ. Learning theory is rooted in the work of Ivan Pavlov, the famous scientist who discovered and documented the principles governing how animals learn in the 1900s. So question था reference to the earliest study. Earlier में first हो जाएगा. तो जो second question का आंसर आपको मिल गया? Yes, ma'am. पैराग्राफ ए है सेकंड का. Yes, ma'am. यहाँ पे है ना, तो Yes, ए ma'am. में वो हो गया. ठीक है. अब इसमें हमने देखना है कोई और आंसर, ऐसे बस क्विकली देख लो कोई और आंसर आपको मिल रहा है. और कोई आंसर है नहीं इसमें. अब बी में देखो, बी में कोई आंसर मिल रहा है आपको? क्विकली ऐसे स्किम सा करो और देखो. ओके, सी में देखो. तो ये क्या था? The culprit proved to be the versatile black rat. तो culprit कौन था? Black rat था. पता चल गया किसने स्ट्रिप करा? ये क्वेश्चन है हमारा. The discovery of who stripped the pine cone. Yes, ma'am. Yes. That will be C. Okay, C. question number 3 will be C. अब यहाँ पे D पैराग्राफ में देखो. यहाँ पे ह्यूमन लर्निंग की बात हुई है. न्यू फोटोकॉपियर व्हिच यू कैन वर्क आउट हाउ टू यूज वन समवन एज श्योर नो हाउ टू. तो ह्यूमन रेड्स की और इसकी ह्यूमन की उसका कंपैरिजन हो गया. यस ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, आपको मिल गया डी.
अब ई में देखो कोई आंसर है? The cost proved to be less than 10% of the energetic यस मैम यस cost effective experiment की बात हो गई। हाँ तो ई हो जाएगा फोर्थ हाँ, वन। तो उसका ई है, सारे आंसर्स मिल गए, ठीक है। So we've come to know all the जैसे answers. मैंने ये काफी टाइम पहले करा था ये, but इतना ये इतनी हार्ड रीडिंग है नहीं मैम, हाँ, ये इतनी हार्ड रीडिंग है नहीं, अगर आप थोड़ा सही करेंगे तो थोड़ी होगा। इजी लगी ना? अब Yes, आपको ma'am. ना, जब आप डेली एक एक रीडिंग पैसेज मेरे साथ करते हो और फिर एक पूरी रीडिंग 3 पैसेजेस आप प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी आपको धीरे धीरे सबको इजी लगने लग जाएंगी रीडिंग्स। मैम Okay. 28 के समथिंग आया मेरे स्कूल हाँ, में, क्या नाम है जो Okay. कल। And now what I have planned is 11:45, 10:45. So it's 10:20 yet. ठीक है? तो 25 मिनट मैं ना मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे से बहुत नाराज हैं, तो मैंने ना उस क्लास में आपकी ऑनलाइन क्लास लेनी है, बट आई विल टेल देम टू बी कंप्लीटली साइलेंट, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैं आज आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट और आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस, दो के कोशिश करूंगी कि दो के जो है वो कवर करा दूं स्केलेटन्स। फिर हमारे स्केलेटन्स कौन सा रह जाएगा? सिर्फ डिस्कस ऐसे का। We have done the skeleton of problem solution, we have done the skeleton of agree disagree, we have done the skeleton, दो ही कर रहे हैं अभी तक। Yes, ma'am. मैम दो ही हुए ना अभी। हाँ, दो करे हैं, तो दो आज हो जाएंगे और फिर डिस्कस का रह जाएगा। डिस्कस का मैंने बहुत बार बड़ी अच्छे से कराया हुआ है, मैं एक आध रिकॉर्डिंग देखूंगी, तो आज जिनका 4 को पेपर है उनके लिए सारे स्केलेटन्स हो जाएंगे कैसे कवर करने हैं, ठीक है। तो आई विल बी पुटिंग अप सम ओल्ड रिकॉर्ड। आप में से किसका किसका पेपर है 4 को? मैम मेरा पेपर परमप्रीत का है, और मैम परमप्रीत अपना थीसिस स्टेटमेंट एंड टॉपिक सेंटेंसेस पे ज्यादा फोकस करो। शॉर्ट इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स एंड वर्ड काउंट आपका कम होता है, उसको पूरा करने पे फोकस करना, तब जाके अच्छे बैंड आएंगे। ओके, एंड यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप अपना रीडिंग और लिस्टिंग को फोटे रखो। फोटे मींस उसको जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और उसमें कोशिश करो कि आपके 7+ 8+ जाएं, सो दैट ओवरऑल बैंड स्कोर 7.5 जाए। उन दोनों में चले गए तो ओवरऑल चला जाएगा, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। ओके ओके मैम। दो चीजें आपका फोटे होनी चाहिए, बिकॉज आई नो you're doing well, your sentence structures are coming out right, so work on that. Okay. Don't ignore those 2 modules. That is what I mean to say. Okay, so we'll get back. It's 10:23:25. So 20 minutes हैं, उसके पहले मुझे वहाँ उस कमरे में setting भी करनी है. So I'll do the setting and we'll be doing the trying to do the skeletons of is this a positive or negative development, and do you think the advantages are more than the disadvantages? ठीक है? Yes, ma'am. Okay, bye for now and join with the same link. Yes, ma'am.